alaikum viewers, a very warm welcome to everyone. I am Zainab Shabir from Geological Engineering Department, UET Lahore, and I am from Session 1A and member of Society of Geoscientists and Engineers, SGE UET Lahore. I am going to host today's event with co-host Saifullah. Now he will introduce himself. Assalamu alaikum. I am Saifullah from Geological Engineering Department UET Lahore and I am from session 19. I am also a part of Society of Geoscientists and Engineers UET Lahore. Today we are going to interview another alumni of Geological Engineering Department on behalf of SGE. Our guest is Mr. Ayaz Mustafa, alumni from session 2005. He did MSc from King Fahd University of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia, and has specialization in petroleum geomechanics, rock mechanics. He has worked in NASPAC. Currently, he is working in King Fahd University and serving as researcher here. He had years of experience in this field and also have other experience regarding this field. Now, I would like to invite our alumni to add some words in his intro. Myself, Ayaz Mustafa, and I'm currently working as a researcher in a Center for Integrative Petroleum Research here in King Fahd University of Petroleum and Minerals. And I have been working here for last 3 years. And I joined in March 2018. And before that, I worked for more than a year in Qatar. And before that, I worked for some time in Abu Dhabi and Pakistan as well. I got my master's degree from King Fahd University in 2015. I completed in 2014, and in the first quarter of 15, I got my degree. And after that, I spent some time with Schlumberger, few months. And due to the oil and gas downturn, I quit the Schlumberger and joined the other companies. And in 2018, I got the opportunity again from King Fahd University. And in parallel, I'm also doing PhD from Malaysia, from Petronas University. And this is my current status. So, sir, our prime purpose of conducting these interviews is to make our current students realize that what is happening in the field. By sharing your experience, they can get benefit from it. I hope they will listen this interview till the end. I will appreciate them for listening this interview. Firstly, a very warm welcome to you, sir. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. How about you? Sir, we are fine. And how's the department and everyone there? Sir, everyone is super and doing great in their positions. MashaAllah. Sir, firstly, tell me about the current situation. Like, in this pandemic, every business is almost shut down. So how this COVID, this pandemic affected your job, and how was your routine nowadays? Actually, as I was discussing with one of your colleagues, that one of your classmate, that recently I just went to Pakistan and came back 3 days back. So here my routine is definitely I have to go office and came back in around 5 o'clock, and mostly after my job or after my working hours, I do some research or I do work on my PhD. And currently, I'm involved in the different research projects, mainly funded from Saudi Aramco. Because this center is not only a center; it's basically a big college. It's known as a College of Petroleum and Geosciences, and in this college, there are 3 different wings. One is the Petroleum Engineering Department, the other one is the Geoscience Department, and the third one is the Center for Integrative Petroleum Research, that is CIPR. So I'm basically attached or affiliated with the CIPR. So where we do the innovative research in collaboration with many universities in US like MIT, Stanford, and Cornell University. And here we are formulating different ideas or working on different innovative ideas to improve the oil production and how we can apply the different, make the petroleum activities more economical. Great. Sir, firstly start from your university life. We have learned from the profile that you were part of SG. So how this society proves beneficial Actually, for I was you? not actively
I was not active member of SGE. At that time, the SGE was just formulating or just in the development stage. So from 2011 to 12, for 1.5 years, I was also a faculty member in UET Lahore in Geological Engineering Department. And at that time, there were so many activities in the department. And those activities, वो जो activities थी वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा उनमें बूम आया था जब ये डॉक्टर फारूक वापस आए, because he loves the department and he do always the best for the department and for improving the curriculum and for improving the department. डिपार्टमेंट का जो एक इमेज है इंडस्ट्री में या आपकी बाकी वर्ल्ड में, उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर होकर एफर्ट करते हैं. यस सर, एग्जैक्टली. अभी भी हम लोग के करंट चेयरमैन है, सो ही इज वर्किंग रियली हार्ड फॉर स्पेशली फॉर जॉब्स एंड लाइक इस तरह से कि स्टूडेंट्स को हर तरफ से बेनिफिशियल हो ना, बिकॉज जॉब रेट भी हम लोग को पता है पाकिस्तान में, लेकिन वो अपनी मतलब 100% एफर्ट कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह कुछ अच्छा होगा आने वाले चंद सालों में. बिल्कुल. ओके इंशाल्लाह. सर, फर्स्ट हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी आफ्टर ग्रेजुएशन से लेकर अब तक किस तरह की जर्नी रही और आपने कौन कौन सी हार्डशिप्स फेस की ड्यूरिंग योर जर्नी. I graduated in 2019 and the phase was not very difficult at that time. Luckily उस वक्त 2009 में ग्रेजुएट होने के बाद फौरन बाद तकरीबन 1 महीने बाद ही मेरी जॉब हो गई थी नेस्पाक में. And we were 10 classmates that got job in नेस्पाक. 10 क्लास फेलोज हम इकट्ठे जो अपॉइंट हुए थे नेस्पाक में, और हमें हमें एम्प्लॉय किया गया था एबटाबाद में. तो वहाँ पर हम इकट्ठे थे, तकरीबन 1 साल नेस्पाक में रहे. फिर उसके बाद नेस्पाक क्विट की, कुछ मोटिवेशंस थी, कुछ जहन में मतलब चीज़ें थी. उसके यूईटी ज्वाइन की जनवरी 2011 में एज अ लैब इंजीनियर और लेक्चरर. 1.5 year 3 semester यूईटी में एज अ फैकल्टी में रहे. एट दैट टाइम डॉक्टर ताहिर अली गिलानी, ही वाज द चेयरमैन. अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे. ताहिर अली गिलानी साहब चेयरमैन थे और हम तकरीबन 4 क्लास फेलो थे तो जो अपॉइंट हुए थे एज अ लेक्चरर. तो 1.5 साल यहाँ पर फैकल्टी में सर्विस देने के बाद आई गॉट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम किंग फाहद यूनिवर्सिटी इन 2012. तो फिर मैं स्कॉलरशिप पे मास्टर्स करने आ गया इधर लीव लेकर, और यहाँ पर तकरीबन मुझे 2.5 साल लगे मास्टर्स कंप्लीट करने में, और दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल. और यहाँ पर मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद डेफिनेटली मैं एक जिस बैकग्राउंड से मैं आया था, जियोटेक के बैकग्राउंड से था, यहाँ पर मेरी जो सारी स्टडीज़ थी वो पेट्रोलियम से रिलेटेड थी. तो पेट्रोलियम से रिलेटेड, फिर उसके बाद थीसिस पेट्रोलियम का, तो फिर मेरी लाइन थोड़ी सी चेंज हो गई, तो मैं इधर पेट्रोलियम साइड पे ज़्यादा आ गया. आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स, मुझे डिग्री कंप्लीट होने से पहले मुझे श्लम्बर्जर में ऑफर हो गई थी. तो आई सपोज टू ज्वाइन श्लम्बर्जर राइट आफ्टर ग्रेजुएशन. बट शायद आपको याद हो 2015 में एक बहुत स्लम्प आया था ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, जिसको डाउन टर्न, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल एंड गैस में बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई. तो उसी सिलसिले में फिर मेरा भी जो केस था वो ज़रा मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं हो सका सक्सेसफुल. तो वो जो पीरियड था 2015 से 2016 तक, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए. मतलब उसमें मैंने बहुत एफर्ट की. काफ़ी जगहों पे मेरे बाकी क्लासमेट्स जो थे वो काफ़ी मतलब सब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा सेटल थे डिफरेंट कंट्रीज़ में, और कुछ मास्टर्स के लिए चले गए थे. तो मुझे वो आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स मुझे एक टफ टाइम से या हार्ड टाइम से गुजरना पड़ा. तो वो 1.5 साल मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था. और लेकिन उस 1.5 साल में मैंने ये किया कि मैं जब पाकिस्तान आया, क्योंकि मैं 3-4 जगहों पे मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला, लेकिन एक सऊदी मकामिन कंपनी है जियो फिजिक्स की यहाँ पर, वहाँ पे मेरी जॉब हुई, मेरी किंग फाहद यूनिवर्सिटी में जॉब हुई, श्लम्बर्जर में हुई, लेकिन ड्यू टू डाउन टर्न या क्राइसिस की वजह से कहीं पर भी मेरा
सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। तो लेकिन उस पीरियड से मैंने सीखा बहुत कुछ कि डेफ़िनेटली जब आप थोड़ा-सा गिरते हो, तो या थोड़ा-सा नीचे जाते हो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान जाके 2-3 महीने तो मैं स्लम्बरजर में ही रहा इस्लामाबाद में। फिर उसके बाद मुझे मतलब मैं अबू धाबी चला गया, तो वहाँ पे तकरीबन 4 से 5 महीने रहा और उस वक़्त मतलब मेरी एक जॉब हुई सऊदी अरब में दोबारा, तो उस वक़्त मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। तो वो एक मुश्किल दौर था मेरे लिए कि 2-3 महीने फिर दोबारा एक मुश्किल फ़ेज़ में आ गया था मैं। उसके बाद फिर मैंने एक लाहौर में यूनिवर्सिटी है, इंपीरियल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर एज़ अ टीचर मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एज़ अ टीचिंग स्टार्ट की और 6 मंथ्स मैं वहाँ रहा और एक्चुअली मैं हमेशा से जब भी मेरे पास कुछ मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो डेफ़िनेटली मुझे एक प्रो है, आपको सिर्फ़ एक प्लान पे नहीं चलना होता, आपके पास प्लान बी, सी, डी सारे प्लान आपके पास होने चाहिए। सो एज़ अ प्लान बी और सी मैंने पीएचडीज़ के लिए भी मतलब कर रहा था। तो मुझे मलेशिया से पीएचडी ऑफ़र हुई हुई थी, तो फिर मैं पाकिस्तान से जॉब क्विट करके मलेशिया चला गया था। वहाँ पर कुछ अरसा रहा तो फिर मुझे कतर में एक कंपनी है अमिको, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, वहाँ पे से ऑफ़र हुई तो मुझे वहाँ मलेशिया से छोड़ के फिर मैं कतर आ गया था और वहाँ तकरीबन सवा साल रहा। लेकिन वो जॉब भी मेरी पेट्रोलियम से रिलेटेड नहीं थी कि मैं 2.5 साल या 3 साल यहाँ पर जो मास्टर्स किया, जिसमें मैंने अपनी एनर्जी वे लगाई और अपनी एफ़र्ट दी या अपना टाइम डेडिकेट किया, वो फिर मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली वहाँ पे जब मैं 1 साल रहा, तो फिर मुझे यहाँ पर किंग फहद यूनिवर्सिटी में आई हर्ड कि यहाँ पर अरामको ने एक बहुत बड़ी फंडिंग की है, जिसमें किंग फहद यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम का कॉलेज बनाया है एंड दे आर नाउ ट्राइंग टू उसको वो टॉप 10 कॉलेजेस में लाना चाह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी फंडिंग थी, उन्होंने एक रिसर्च सेंटर बनाया, तो वहाँ पर एक कुछ जॉब्स क्रिएट हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सुपरवाइज़र जो थे यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। उनका नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम और वो काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी उन्होंने मतलब एफ़र्ट की मेरे लिए। फिर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज़ अ रिसर्चर 2018 में वापस आया एंड सिंस देन आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सैटिस्फाइड विद माय जॉब। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि यहाँ पर मुझे जो ज़िंदगी में मेरी जो अचीवमेंट थी या जो डेस्टिनेशन थी, वो मुझे मिल गई है। अब इसी प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके मैं अपनी फ़ील्ड में और फ्लरिश कर सकता हूँ और थ्राइव कर सकता हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ रहकर मैं अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से उसको शेप दे सकता हूँ। वाओ तो सर, ये अमेजिंग। अभी 3 साल मुझे यहाँ पर हो गए हैं, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं चल रहा है और फिर मैंने पीएचडी स्टार्ट कर दी दरमियान में। अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी मेरी चल रही है मलेशिया से, पेट्रोनास यूनिवर्सिटी से। तो होपफुली दैट आई विल कंप्लीट माय पीएचडी एंड विल बी मैं एक बहुत अच्छा और ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ यहाँ पर अपना। सर, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, आपकी जर्नी से पता लग रहा है और फाइनली आपको सक्सेस यानी जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया। यानी बेसिकली हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, तो हम लोगों के लिए जर्नीज़ बहुत सारी हैं आगे। तो एग्ज़ैक्टली, सर एग्ज़ैक्टली। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने जिस तरह बताया कि आपने नेस्पाक ज्वाइन की, देन उसको लीव कर दिया, श्रमबर्जर गए, वो भी लीव कर दिया। तो क्या वजह हुई कि आपने लीव कर दिया? आपको बेटर अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी या यहाँ का आपको मतलब स्टाफ या कोई और मसला था? नेस्पाक तो इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि हमें गिलानी साहब यहाँ पर फैकल्टी की कुछ कमी थी जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। उस वक़्त हमारे जो टीचर्स थे, हमारे टीचर्स में डॉक्टर फ़ारूक हैं, एक खुर्रम साहब हैं, वो भी सऊदी अरब में ही हैं, या डॉक्टर ज़ुबैर हैं। वो सब उस वक़्त हायर एजुकेशन के लिए पीएचडीज़ करने गए थे अमेरिका। तो उस वक़्त कुछ स्लॉट्स थी डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट को ज़रूरत थी, तो गिलानी साहब हमें लेकर आए थे। तो वो टॉप के 3-4 जो स्टूडेंट्स थे, मैं था और मेरे 3 और फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, अच्छे दोस्त हैं। तो हम 3-4 आए थे डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद आगे डेफ़िनेटली जब आप एक प्लेटफ़ॉर्म पे आते हो, तो बेहतरी के लिए सोचते हो, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए। तो फिर वहाँ से एक एजुकेशन जब ये एकेडेमिया में आए, तो फिर एहसास हुआ कि हमें क्वालिफ़िकेशन भी इम्प्रूव करनी चाहिए। तो फिर क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव करने के लिए मास्टर्स के लिए अप्लाई किया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में।
तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से स्कॉलरशिप मिल गया तो यहाँ आ गए थे। और स्लम्बरजर वाला जो केस था वो ये था कि उस वक्त एक बहुत बड़ा स्लम्प था ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, और पूरी दुनिया में ही लाखों लोग फायर हो रहे थे। तो मेरा वो जो केस था वो उसी डाउन टर्न या क्राइसिस की नज़र हुआ था। तो बहरहाल आप हार्ड वर्क करते जाओ, अपनी डायरेक्शन को मतलब अपनी डायरेक्शन पे चलते जाओ, तो अल्टीमेटली यू अचीव योर डेस्टिनेशन। यस सर, श्योर। तो सर अभी आप करंटली किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, मतलब रिसर्च कर रहे हैं आपने बताया, तो किस मतलब प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं? हमारे पास यहाँ पर जो सेंटर में प्रोजेक्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एनहांस ऑयल रिकवरी है जिसमें, और या हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग है। इसी तरह बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है अभी, मतलब जो अभी पेटेंट होनी है वो भी इंडस्ट्री में, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं या ऐसे वो टेक्निक्स हैं जो अभी तक इंडस्ट्री में यूज़ नहीं हो रही। मतलब वो अभी उन पे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, उन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसको फील्ड पे या इंडस्ट्री में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो मेनली आपको जो बताऊँ, हमारे पास जो यहाँ पे जिन प्रोजेक्ट्स पे मैं इन्वॉल्व हूँ उसमें ज़्यादातर केमिकल ट्रीटमेंट और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स और कोर फ्लडिंग, रॉक मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और ब्लॉक स्केल हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, लेबोरेटरी स्केल मतलब स्मॉल स्केल हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, और कुछ ऐसे इनोवेशन है जैसे थर्मोकेमिकल्स हैं, थर्मोकेमिकल्स के को इंट्रोड्यूस करके हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो ये सब प्रोजेक्ट्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, और यहाँ पर मतलब फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है रिसर्च की, तो प्रोजेक्ट्स भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरी कुछ ड्यूटीज़ हैं, मेरे 2 सुपरवाइज़र हैं इधर। एक डॉक्टर जैक डवॉर्किन है, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं, और एक डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम, वो यहीं के एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं दोनों के साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सबसे अच्छी चीज़ कि जब आप रिसर्च एनवायरनमेंट में आते हो, यहाँ पर आके आप वो रिसर्च में वो इनोवेशन देखते हो जो अभी तक मतलब बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें जो अभी इंडस्ट्री में या यूनिवर्सिटीज़ में इन ही नहीं हुई, उस पे आप काम कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट ले रहे हो जो मतलब ऑलरेडी जिस पे काम हुआ है, ऐसा नहीं है। उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो अभी इंडस्ट्री में मतलब अभी उसमें इनोवेशन या अभी इंडस्ट्री में उस पे अभी मज़ीद रिसर्च होना बाकी है। यस सर, एग्जैक्टली। रिसर्च का मतलब ये है कि हम कुछ न्यू जो है करें, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि अगर पुरानी ही काम पे चीज़ों पे काम किया जाएगा तो दैट्स नॉट कॉल्ड रिसर्च। वो रिसर्च नहीं होती। या ऑफ कोर्स। तो सर आप जाहिर है जॉब भी करते होंगे और रिसर्च का काम भी आपका चल रहा है, तो आप किस तरह से टाइम मैनेज करते हैं अपना? क्या डिफिकल्ट नहीं है या मतलब हो जाता है मैनेज? एक्चुअली द बेस्ट थिंग जो मुझे लगती है कि मेरी जो जॉब है वही रिसर्च है। मतलब मुझे रिसर्च ही करनी है अपनी जॉब में, तो मुझे दोनों के लिए अलग-अलग टाइम नहीं होता मतलब। तो मैं बड़ा सैटिस्फाई हूँ कि मैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टाइम इस तरह मैनेज होता है कि मुझे डेफ़िनेटली, अब मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बेटा है, तो मैं घर आके भी मुझे टाइम थोड़ा डेडिकेट करना होता है। तो मैं वहाँ से तकरीबन ऑफ़िस मेरा टाइमिंग 5 ओ क्लॉक तक है। तो उसके बाद फिर मैं घर आके कुछ टाइम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। कभी हम मतलब कभी बाहर जाएँगे, या शाम के टाइम 2-3 घंटे बैठ के मैं कुछ पीएचडी का काम कर लेता हूँ। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रूटीन और बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है, और अच्छे से टाइम गुजर जाता है मेरा। वाओ या सर, मतलब आपने काफ़ी अच्छी तरह से अपना टाइम मैनेज किया है और मतलब आप हैप्पी, खुश हैं अपनी लाइफ से जो आपकी इस टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। सर अगर आपसे इस स्टेज पे पूछा जाए कि व्हाट इज सक्सेस फॉर यू, तो आप क्या कहेंगे? दिस इज योर सक्सेस? एक्चुअली सक्सेस जो है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होती है। मेरे लिए सक्सेस है कि आपके पास जो कुछ है, आप उस पे मुतमईन रहो, और अपनी एफर्ट, स्ट्रगल, हार्ड वर्क कभी भी नहीं, मतलब उसको गिव अप नहीं करो। आप जब गिव अप करते हो तो वो आपका फेलियर है। आपको सक्सेस ज़रूरी नहीं कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए, यस और सर, जो आप चाहते एग्जैक्टली। हो वो सक्सेस नहीं होती। सक्सेस इज़ समथिंग दैट जो आपको
मतलब आप जिससे आप पीसफुली ज़िंदगी गुज़ार रहे हो, या आप मेंटली सैटिस्फाइड हो, आप हर चीज़ से सैटिस्फाई हो और एक पीसफुल ज़िंदगी गुज़ार रहे हो, दैट इज़ सक्सेस। और एक मतलब जो आप चाहते हो, ज़रूरी नहीं वो सक्सेस हो। मे बी वो मतलब अल्लाह की रज़ा में खुश रहो, आपको जो मिला है उसको, लेकिन आप जो चाहते हो, जो आपकी ख्वाहिशात हैं या जो आपकी अचीव गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके लिए आप कंटिन्यूअस मेहनत करते रहो। कुछ लोगों को अचीवमेंट वो आप अचीव कर लोगे, कुछ लोग 30 इयर्स में अचीव कर लेते हैं, कुछ लोग 40 इयर्स में अचीव करते हैं, कुछ लोग 45 इयर्स में। तो देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट पीपल। Yes. कंपैरिजन नहीं होता इसमें। हर एक बंदे का सक्सेस का जो एक वर्ड है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। कि Yes, sir. कुछ लोग इंडस्ट्री में बैचलर्स करके इंडस्ट्री में जाते हैं, इंडस्ट्री में 10 साल का उनको एक्सपीरियंस होता है, उनकी नज़र में वो अचीवमेंट है। कुछ लोग पीएचडी करते हैं, उनकी नज़र में वो अचीवमेंट सक्सेस है। लेकिन जो इंडस्ट्री में जॉब करेगा, डेफिनेटली वो उसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आएगा। आफ्टर पीएचडी आपके पास एकेडमिक एक्सपीरियंस है। तो हर एक का जो सक्सेस का सोचने का वो है, वो डिफरेंट है। मेरी नज़र में सक्सेस ये है कि आप सेटिस्फाई रहो, मेंटली पीस में रहो, और आपके पास जो है उस पे खुश रहो। अपनी आज जो है वो अपना बेहतरीन गुज़ारो। फ्यूचर के लिए आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर के लिए बस आप मेहनत करते रहो। तो डेफिनिटली इफ यू आर वर्किंग हार्ड with dedication, devotion, so ultimately you will get what you want. एग्जैक्टली सर, अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि सिर्फ आप हार्ड वर्क करें, मंजिल आपके सामने खुद ही आ जाएगी। या तो सर, अभी मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जिस टाइम आप थे उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं था, बट अब बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो चुका है, तो बहुत से फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल सकती या नहीं मिल पाती किसी वजह से। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न हो सकती है कि उनको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाती या जॉब मिल ही नहीं सकती कोई, बहुत ज़्यादा ट्राई एक करने के बावजूद? उसकी सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि आपकी मतलब वी आर पाकिस्तानीज़, तो हमें हर चीज़ पाकिस्तान में जियोलॉजी की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी नहीं है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री या प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं वो सफ़र करते हैं, और उसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत टैलेंटेड होते हैं, और वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते या जॉब्स उनको नहीं मिलती। वो शुरू में 6 मंथ्स, 8 मंथ्स या सम टाइम 1 ईयर उनको सफ़र करना पड़ता है। तो उसको उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही तो एट लीस्ट आप अपनी क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव कर लो, मास्टर्स कर लो, या आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ग्रेड्स अच्छे हैं, आप टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, आप में पोटेंशियल है, तो आप फौरी तौर पे कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए मास्टर्स के लिए अप्लाई करें और मास्टर्स की स्कॉलरशिप्स अवेल करने की कोशिश करें। सो मोर जिस और उसके लिए आपको पैशन चाहिए। पैशन अगर आप में होगा, आपके अंदर एनर्जी है, पैशन है, पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह पर ज़रूर चले जाओगे। वो शुरू में मतलब 6 माह 8 माह उसमें अगर कोई आपको थोड़ा सफ़र भी करना पड़ता है, तो दैट इज़ नॉर्मल फॉर एवरीवन। लेकिन आप अपनी एफर्ट या हार्ड वर्क नहीं छोड़ो, उसी तरीके से मतलब हार्ड वर्क करते जाओ। जॉब में अगर आप एक्सेल नहीं कर पा रहे, या जो आपको जॉब में अच्छे आपकी जो डिज़ायर्ड जॉब है या जो आप चाहते हो वो नहीं मिल रही, तो आप एटलीस्ट अपनी क्वालिफ़िकेशन इंप्रूव कर लो। मैं बहुत से केसेस मैंने देखे हैं, जिनमें बहुत से मेरे जूनियर्स भी हैं, मेरे अपने क्लासमेट्स भी हैं, जिनको बहुत ही जॉब्स नहीं मिली, उन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशन इंप्रूव कर ली, और क्वालिफ़िकेशन इंप्रूव करने के बाद उनको बहुत अच्छी जॉब मिल गई। तो ये मतलब आप किसी भी तरह से आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, यस सर। और किसी भी पॉइंट पर आपने गिव अप नहीं करना, आपने चलते रहना है। लाइफ अपना एक लाइफ का जो डायनामिक मॉडल बनाना है आपने। सर, हम लोग इस तरह होता है कि अगर हम लोगों का एक ही गोल हो तो हम ज़्यादा पैशनेट होते हैं उसको अचीव करने के लिए कि अगर ये ना हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, बट आप बता रहे हैं कि आपने मतलब ज़्यादा गोल स्पेसिफाई किए हुए थे, तो क्या मुश्किल नहीं है कि आप फिर आपका ध्यान मतलब कि डिवाइड नहीं हो जाता कि ये ना होगा तो वो हो जाएगा, ये ना होगा तो वो हो जाएगा, आप एक के लिए डिटर्मिन्ड होकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते? लेकिन आपका चलें केस है कि आपने हार्ड वर्क किया, बट अगर कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से भी होते हैं तो क्या ये ठीक है कि मतलब एक से ज़्यादा आपके गोल्स होने चाहिए?
नहीं, आपके गोल एक होना चाहिए, अचीव मतलब जिसको आपने अचीव करना है। लेकिन आप जब निकलते हैं दुनिया में, आपको वर्ल्ड में ज़रूरी नहीं कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। उसके लिए आपके पास एग्जैक्टली। प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब होने चाहिए। ये एक ओह बहुत ठीक है। प्रोएक्टिव अप्रोच होती है कि आप एक रूट अगर आपका बंद है, तो आप ऐसा नहीं कि उसी में डिसअपॉइंट होके बैठ जाओ। आपका एक रूट बंद है, आपके पास पोटेंशियल है, एनर्जी है, तो आप सेकंड रूट अडॉप्ट करके आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाना। अगर सेकंड रूट भी बंद है, तो आप थर्ड रूट अडॉप्ट कर लो। तो अपने लिए खुद से कोई दरवाज़ा बंद नहीं करो, खुद से कोई रास्ते मतलब हर तरफ आपको मतलब प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सारे होने चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं है जैसे मैं यहाँ पे मास्टर्स किया, मास्टर्स करने के बाद एक ऑयल एंड गैस में क्राइसिस आ गया। उस ऑयल एंड गैस में क्राइसिस आया तो मुझे काफ़ी सफ़र करना पड़ा। मैं इस्लामाबाद में केस मेरा रुक गया, सऊदी मकामी में रुक गया। किंग फहद यूनिवर्सिटी में मेरी उस वक़्त जॉब हो रही थी, लेकिन उस वक़्त भी मतलब मुझे उस वक़्त सब दरवाज़े बंद थे। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, मैं पाकिस्तान गया। पाकिस्तान जाने के बाद मुझे मेरे एक जूनियर से कॉन्टैक्ट हुआ, तो मैं वहाँ से अबू धाबी चला गया। 2-3 महीने वहाँ रहा, 3-4 महीने। फिर उसके बाद मेरी एक और दोबारा से सऊदी अरब में जॉब हुई। तो वो एक मुश्किल वक़्त था, लेकिन अगर मैं उस वक़्त सिर्फ़ एक जगह पे बैठा रहता कि एक ही चीज़ का इंतज़ार करता रहता, तो मैं शायद अपने लिए बहुत नुकसान करता, या अपना जो मेरी डेस्टिनेशन थी या अचीवमेंट थी उसको मैं अचीव नहीं कर पाता। फिर लाइफ़ इज़ आई मीन आपको हरकत में रहना पड़ता है, आपको डायनामिक अपना मॉडल बनाना पड़ता है। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैं यहाँ पर फैकल्टी में जॉब कर रहा हूँ, मुझे इतनी सैलरी मिलती है, इतना मुझे पीएचडी का स्कॉलरशिप मिल जाएगा, तो मैं पीएचडी करने चला गया। तो फिर कतर कुछ अर्सा रहा। अब कतर में जो मैंने जॉब की वो मेरी अपनी पेट्रोलियम से रिलेटेड नहीं थी। वो डेफ़िनेटली वहाँ पर कुछ हमारे जूनियर्स हैं, जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। वो एक पाइलिंग कंपनी है, तो वो मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन आपको वक़्त के मतलब जो वक़्त की जो के मुताबिक आपने आपको मोल्ड करना पड़ता है। तो वहाँ पे बट कोई भी चीज़ आपके फाइनल डेस्टिनेशन आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए। हमेशा आप उसके लिए एफ़र्ट करते जाएँ। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको कभी-कभी सैक्रिफाइसेज़ या कभी-कभी कुछ ऐसा करना होता है जिसकी वज़ह से आप एटलीस्ट हम पाकिस्तान में अब मैं अगर 2-3 साल जॉब ही ना करूँ, तो सर्वाइव कैसे करेंगे? तो यस उसके सर, लिए भी आपको एग्जैक्टली। सोचना है। तो उसके लिए भी आपको सोचना है। तो मैं कतर में 1 साल रहा, बट दैट वाज़ नॉट माय लास्ट डेस्टिनेशन। मुझे आइडिया था कि मैं कुछ अर्सा करूँगा, अभी ऑयल एंड गैस के हालात ठीक हो जाएँगे, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो वही हुआ, मैं 1 साल जॉब की, मैं वहाँ से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से सऊदी अरब आ गया। यहाँ पर रहकर भी मैं आप किसी भी चीज़ को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बना सकते। आप यहाँ पे रह के मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ। अब यहाँ पीएचडी के बाद आप डेफ़िनिटली आई विल ऑप्ट फॉर बेटर अपॉर्च्युनिटी कि यहाँ से मतलब दुनिया बहुत बड़ी है। आपको सिर्फ़ एक प्लान के थ्रू नहीं चलना चाहिए। अब एक प्लान पे चलेंगे तो फॉर वो प्लान फ़ेल होता है। तो व्हाट इज़ द अल्टरनेट? अल्टरनेट आपके पास हमेशा होना चाहिए कि आप प्लान बी, प्लान सी। तो सर वो एक बेसिकली सक्सेसफुल अगर आपने ज़िंदगी गुज़ारनी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये है कि हम लोग का डेस्टिनेशन एक ही होनी चाहिए, बट हम लोग को उसके लिए डिफरेंट वेज चूज करने चाहिए कि अगर ये नहीं तो इस डिफरेंट तरीके। रूट्स आपको अडॉप्ट करने हैं ओके, डेफ़िनिटली। एग्जैक्टली, ठीक है। Sir, what are your thoughts about CGPA's importance, as it is a very hot topic among newly enrolled students? CGPA definitely is very important for your future studies. Uh, but after you get your but you should also get you involved in different extracurricular activities. And but CGPA is very important for the to get a good job and to get scholarship for your masters and for your PhD, because it plays the vital role in your in your that delineate your performance during your bachelor's. And most of the time the professors and your teachers, mentors, they recommend you or they give you the recommendation letters based on your GPA. तो जीपीए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपकी पूरी की पूरी जो 4 साल की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी जीपीए से रिप्रेजेंट होती है। तो डेफिनेटली यू शुड कीप योर जीपीए वेरी गुड। इन एडिशन आपको कुछ एक्स्ट्रा मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल किताबी कीड़े बन जाओ या बिल्कुल बुक्स में लगे रहो।
बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए आपके लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। लेकिन उसके लिए आपको टाइम मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ के आप सारा दिन खेल रहे हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। Sir, any suggestions for final year project? फाइनल प्रोजेक्ट सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट होता है कि आप पेट्रोलियम में इंटरेस्टेड हो, जियोटेक में इंटरेस्टेड हो या टनलिंग में इंटरेस्टेड हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टनलिंग, तो डेफिनेटली मतलब आपका इंटरेस्ट क्या है, और अगर आपका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि वी वांट टू गेट द बेस्ट, वी वांट टू अचीव द बेस्ट, कि हमें बेस्ट मिल जाए, हम हार्ड वर्क कर लेंगे। तो उसके लिए मतलब आप कोशिश ये करो कि किसी इंडस्ट्री, अगर आप फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम में आप करना चाह रहे हो 2-3 बंदे, तो पेट्रोलियम के किसी बंदे से गाइडेंस लो कि वहाँ पर नई-नई इनोवेशन या नई टेक्नोलॉजीज़ कौन-कौन सी है, उस पे काम करो। और कोशिश करो अपने जो थीसिस है, आपका जो डिसर्टेशन है, उसमें सॉफ्ट स्किल्स या सॉफ्टवेयर लाज़मी यूज़ करो। इंडस्ट्री में सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है। जो मतलब मैं जब ग्रेजुएट हुआ तो मुझे यूटी लाहौर में काफ़ी ज़्यादा मुझे डेफिशिएंसी थी इस चीज़ की। तो सॉफ्ट स्किल लाज़मी सीखना, कोई सॉफ्टवेयर्स पे काम करना, मॉडलिंग या और एक्सपेरिमेंटल वर्क भी करो। एक्सपेरिमेंटल वर्क प्लस मॉडलिंग दोनों से मिलके फिर एक कंप्लीट थीसिस बनता है। और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अगर आपका फॉर एग्जांपल जियोटेक से रिलेटेड कर रहे हैं, तो आप नेस्पाक में एनडीसी है या बुराक है, किसी भी अच्छी कंपनी से थोड़ी गाइडेंस लेके वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट हैं, वहाँ पे नई-नई टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही हैं। या हमारे जो एलुमनाई जियोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर जो कतर में हैं या जो सऊदी अरेबिया में, अबू धाबी, दुबई में जॉब्स कर रहे हैं, उनसे पूछें कि उनके पास अगर कोई डाटा है और वहाँ पर जो डाटा है वो काफ़ी मतलब और जहाँ पर एडवांस स्टडीज़ हो रही हैं, उस पे फ़ोकस करें। एक टिपिकल और एक जनरल जो एक प्रैक्टिस होती है जिसको भेड़-चाल कहते हैं, उस तरह नहीं चलें। एक इनोवेटिव या कोई एडवांस चीज़ पे काम करें। सर जैसा ओके कि सर। नेक्स्ट। सर जैसा कि आपने कहा कि हमें जो है अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना चाहिए। तो जी, आजकल जैसे कि पेंडेमिक चल रहा है तो इसमें ऑनलाइन हमें बहुत से फ्री कोर्सेज मिलते हैं, जैसे कोर्सेरा फ्री कोर्सेज ऑफर जी, जी। करता है। तो उसके हमें वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स भी देते हैं। जी, तो आपके ख्याल में ये जो हमें ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ये जॉब हंट करने में इम्पोर्टेंस रखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सिर्फ ऑनलाइन है तो इनका फ़ायदा नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। अगर आपने वो कोर्स कंप्लीट किया है और वो कोर्स किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का है और एंड यू गेट द सर्टिफिकेट फॉर दैट कोर्स, तो डेफ़िनेटली वो आपकी सीवी को मतलब एक स्ट्रॉन्ग करता है आपकी सीवी को, और आपको डेफ़िनेटली आगे स्कॉलरशिप्स में भी आपको फ़ायदा होता है और जॉब्स में भी फ़ायदा होता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी चीज़ को करने से पहले ये मत सोचो कि आपको जॉब लेनी है। आप अपने नॉलेज के लिए या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए करो। आपके पास अगर स्किल है, तो डेफ़िनेटली जब आप जॉब करोगे या आप कहीं मास्टर्स या पीएचडी में स्कॉलरशिप पे जाओगे, तो आपकी वो स्किल्स ही आपके काम आएँगी। सर्टिफ़िकेट आपके पास हो या ना हो, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी अपनी स्किल्स प्रूव हो जाएँगी वहाँ पर, प्रैक्टिकली आप प्रूव कर दोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है ऑनलाइन कोर्सेज़ की तो ज़रूर अवेल करें उसे। सर आप हमें कौन से प्लेटफॉर्म्स रेफर करना चाहेंगे? प्लेटफ़ॉर्म मतलब मतलब कि जहाँ ये पर हम लोगों के लिए स्पेशली ना जियोलॉजिकल इंजीनियर्स के लिए कोर्स हो रहे हो या उनके लिए कोई बेनिफिशियल हो किसी भी तरह से, जिस तरह भी एक अ, कोर्सेरा भी है इसके अलावा। कोर्सेरा है, एक यूडेमी है, इसी तरह ये 2-3 वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और मोस्ट ऑफ द कोर्सेज़ आर ऑफर्ड बाय द वेरी हाई रैंक यूनिवर्सिटी इन यूएस लाइक स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड एमआईटी है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड इन यूके। तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये प्लेटफ़ॉर्म देती हैं या फ्री कोर्सेज़ दे रही हैं आपको। और रिकमेंडेशन मतलब प्लेटफ़ॉर्म से मुराद कि आपकी फ़ील्ड ऑफ स्टडीज़ क्या होनी चाहिए, ऐसे ही पूछा आपने? यस सर एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे कोर्स ऑफर किए जाते हैं तो समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। तो मतलब कोर्स सिलेक्शन के लिहाज से भी काइंडली थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। कोर्स सिलेक्शन बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके जो कोर्सेज़ हैं,
वो इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री ही डिज़ाइन हो। यहाँ पर जब मैं आया था 2012 में किंग फहद यूनिवर्सिटी में, तो मैंने यहाँ पर ये ऑब्ज़र्व किया था कि यहाँ पर जितने कोर्सेज़ या जितनी कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं या जो कोर्सेज़ यहाँ पर डिज़ाइन हो रहे हैं, वो सारे के सारे इंडस्ट्री से डिज़ाइन होके आते हैं। मतलब आपकी इंडस्ट्री एक फ़ोर फ्रंट पे है। मेन उनको उनकी जो डिमांड है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके कोर्सेज़ डिज़ाइन हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो आप कोर्सेज़ पढ़ रहे हैं, उसकी इंडस्ट्री में डिमांड है। तो आपको जॉब्स में मसला नहीं होगा। आपको जॉब्स हंट में मसला नहीं होगा, आपको स्कॉलरशिप में मसला नहीं होगा। सबसे पहला है आप इंडस्ट्री में जो चल रहा है, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन यूएस, यूके ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन यूरोप कि वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी एफिलिएट होती हैं, उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन होती है इंडस्ट्री के साथ। तो आपका जो कोर्स है वो वहीं से डिज़ाइन होके फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेट्रोलियम से में इंटरेस्ट है आपका, तो आपका जो कोर्स है वो ओजीडीसीएल, पीपीएल यहाँ से डिज़ाइन होके आने चाहिए कि हम आगे फ्यूचर में 10 इयर्स या 15 इयर्स या 20 इयर्स में हमारी कंपनी की पॉलिसी ये है कि हम ये हमारे टारगेट्स हैं, तो अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को इस तरह ट्रेन करें कि वो हमारे आगे 20 साल तक हमारे काम आ सकें। या यहाँ पर हम जो टारगेट अपने अचीव करना चाह रहे हैं, वो भी उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकें, अपना रोल प्ले कर सकें। तो इस तरह की कोई होनी चाहिए रेदर देन कि आप प्लेटफ़ॉर्म मतलब मैं आपको कह दूँ कि आप जियोटेक में चले जाएँ। अब जियोटेक में पाकिस्तान में लेकिन जियोटेक में भी वो करें जो आप बहुत एडवांस लेवल की चीज़ हो या बहुत अभी इनोवेटिव हो, अभी इंडस्ट्री में उसकी डिमांड हो, तो वो आपको जियोटेक का के जो इंडस्ट्री में हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं। जो पेट्रोलियम में है वो ज़्यादा पेट्रोलियम से रिलेटेड गाइड कर सकते हैं। मतलब अगर आप मुझसे पूछें पेट्रोलियम का टॉपिक तो मैं आपको बड़ा क्लियरली और बड़े अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि पेट्रोलियम में क्या-क्या इनोवेशंस हो रही हैं, किन-किन चीज़ों पे ज़्यादा काम हो रहा है, लाइक किन-किन चीज़ों की एप्लीकेशन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इनकी एप्लीकेशंस हैं। और अब सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड होते जा रहे हैं, तो यू शुड लर्न सम इंटीग्रेटेड स्किल्स लाइक आपके पास जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग के नॉलेज को आप अप्लाई करें फॉर केमिकल, फॉर पेट्रोलियम कि किस तरह आप डिफरेंट डिसिप्लिन्स को इंटीग्रेट कर सकें और कि जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में जो आपकी स्किल्स हैं वो कैसे बेनिफिशियल हो सकती हैं फॉर अदर डिसिप्लिन्स या फॉर अदर फील्ड्स। ये एक बहुत अच्छी है मतलब कि डिफरेंट फील्ड में केमिकल की फील्ड है या आपके पास फॉर एग्जांपल मैकेनिकल की फील्ड है। अब जियो मैकेनिक्स मैं जब यहाँ पे आया था जियो मैकेनिक्स टोटली पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की फील्ड है। मैं जियो मैकेनिक्स से मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही कोर्स पढ़ा और वहीं से मैंने थीसिस अपना जियो मैकेनिक्स में मोल्ड किया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं जब से आया 2018 से मैं टोटली पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब कर रहा हूँ। मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं और जो लेबोरेटरी वर्क, मॉडलिंग वर्क सब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। मतलब जियो साइंस का शायद मैंने अभी तक जॉब में कुछ नहीं किया 3 साल में। तो ये आपके बेसिकली प्लेटफ़ॉर्म आपको खुद बन जाता है। जब आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है और उन स्किल्स को आप मतलब यू आर अपने आप को ऐसा इंडिपेंडेंट आपने मॉडल बनाना है कि योर स्किल्स कैन बी अप्लाइड टू सिविल, कैन बी अप्लाइड टू एनवायरमेंटल, कैन बी अप्लाइड टू पेट्रोलियम, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग। तो जियोलॉजिकल बेसिक नॉलेज तो आपको हो गया होगा मेरा ख्याल है, बेसिक कोर्सेज आपने पढ़ लिए हैं, तो अपनी Yes, सॉफ्ट sir, स्किल्स को exactly. इम्प्रूव करें। फिर अगर आपका कुछ इंटरेस्ट जियो फिजिक्स में है तो जो जियो फिजिक्स में हमारे अलुमनाइज हैं उनसे थोड़ी गाइडेंस लेके ऐसे प्रोजेक्ट्स करें जो जियो फिजिक्स की नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उस पर काम करें रेदर Okay. देन कि अब एक चीज़ ऑलरेडी डेवलप्ड है, एक चीज़ ऑलरेडी बन गई है, उस पर काम करने का शायद आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। आप उस पर काम करें जो आगे 20 साल में इंडस्ट्री की डिमांड है। Yes, जैसे अब sir. पूरी दुनिया में रीन्यूएबल पे बहुत काम हो रहा है, तो रीन्यूएबल का कोई टॉपिक लेके उस पर रीन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, रीन्यूएबल एनर्जी पे काम करें। हाइड्रोजन एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है, हाइड्रोजन एनर्जी पे आप काम करें, उससे वो दैट इज़ फ्यूचर। वो काम करें जो Yes, sir. फ्यूचर इंडस्ट्री का। प्रेज़ेंट Yes, तो sir. गुज़र गया, प्रेज़ेंट के लिए तो पास्ट 15 इयर्स में एफर्ट्स होते रही हैं। True. बिल्कुल ठीक है. आपने देखना है कि अब आफ्टर 20 इयर्स, आफ्टर 30 इयर्स इंडस्ट्री को जो चाहिए मतलब उस पे आपने आज से आप रिसर्च करेंगे तो आप आफ्टर 20 इयर्स मतलब उस पे आगे इंडस्ट्री में आपको पता होगा कि इस बंदे ने इस पे काम किया और हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। तो डेफिनिटली यू विल गेट बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ इन
industry and in academia in both sectors. सर पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जैसा कि आपने बताया कि आप हेल्प कर सकते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में एआई का क्या रोल है? पेट्रोलियम इंडस्ट्री में एआई का बहुत बहुत मेजर रोल है और आजकल इंडस्ट्री में एआई बहुत ज़्यादा, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है इसको, और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके रेजरवायर्स जो होते हैं वो किलोमीटर्स में होते हैं, तो आप 2 3 4 वेल्स का आप डाटा एक्विजिशन जो बहुत कॉस्टली होती है पेट्रोलियम में, डेफिनेटली वी हैव टू ड्रिल ऑलमोस्ट 8,000 मीटर्स या 7,000 मीटर्स, तो आप इतने डेप्थ में जो बोरहोल कर रहे हैं, आपको वो डाटा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू प्रिडिक्ट कर लेते हो, आपको आपकी कॉस्ट जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप एक बोरहोल पे स्पेंड कर रहे हो वो आपकी सेव हो रही है, तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इकोनॉमिकल हो जाएंगे। तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो डाटा एक्विजिशन बहुत कॉस्टली होती है, स्पेशली व्हेन यू वर्किंग इन द ऑफशोर फील्ड्स। ऑफशोर फील्ड्स में डाटा एक्विजिशन में वहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स, 500 600 मिलियंस पर डे उनकी कॉस्ट होती है रिग की। तो वो जो डाटा वो एक्वायर कर रहे हैं, वो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसको प्रिडिक्ट कर लें या उसकी मॉडलिंग कर लें, तो वो आपको, आप मिलियंस ऑफ डॉलर सेव कर रहे हैं कंपनी के, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो बहुत एक्टिव एप्लीकेशंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम में भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे ईओआर का एक है, इसी तरह जियो मैकेनिक्स है, इसके अलावा हार्डवेयर फ्रैक्चरिंग है, रेजरवायर इंजीनियरिंग है, और ड्रिलिंग है, वेल लॉगिंग है, या पेट्रोफिजिक्स है। इन सब फील्ड्स में ही इसकी एप्लीकेशन है। पेट्रोफिजिक्स एक बिल्कुल सेपरेट एक डिसिप्लिन है, एक अलग से स्पेशलाइजेशन है पेट्रोफिजिक्स, वेल लॉगिंग, और इसके अलावा जियो मैकेनिक्स, एनहांस्ड ऑयल रिकवरी, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स डेवलप किए जाते हैं। इस तरह वो है आपकी आर्टिफिशियल, मतलब डिफरेंट रेजर्व इंजीनियरिंग है, रेजर्व मॉडलिंग है, तो हर डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए, डिफरेंट फील्ड के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई कर सकते हैं। और आप जियोलॉजिकल इंजीनियर है ना, आप सबसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ये क्या है, एक कोडिंग होती है, वो आपकी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट वाले या वो भी डेवलप कर सकते हैं, बट दे डोंट नो जियोलॉजी, दे डोंट नो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। उनको नहीं पता कि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए कैसे यूज़ करनी है, या उनको पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की टर्म्स का नहीं पता, उनको नहीं पता कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जियोलॉजी के लिए कैसे यूज़ करना है। तो वो, अगर आप इस डिसिप्लिन को या आप इसको सीखेंगे, तो आपको पता होगा कि मैंने जियोलॉजी के लिए इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग के लिए या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन के लिए, कि आपको पता है, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पता है, आपको पेट्रोलियम का भी पता है, तो आप दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, जो कंप्यूटर साइंस वाले नहीं कर पाते। Yes, sir. Okay. ओके सर। सर हम अपने कोलीग्स को कैसे कन्विंस कर सकते हैं अपने आइडियाज़ एक्सेप्ट करवाने के लिए? कोलीग्स मतलब कौन, आपके क्लासमेट्स? कोलीग्स नहीं, जैसे कि आप जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे आपके सीनियर्स भी होते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये कि आपके अपने कॉन्सेप्ट्स देखें। जब भी किसी भी जगह पे आप जाते हैं, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपकी स्टडीज़ हो, इफ़ यू हैव पोटेंशियल और इफ़ यू आर एबल टू डू अ चैलेंजिंग वर्क, तो वहाँ पर डेफिनेटली यू विल गेट एप्रिसिएशन। आपको एप्रिशिएट भी करेंगे लोग। डेफिनेटली आप किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं, वहाँ पर 2 4 लोग ऐसे होंगे जो आप चाहेंगे कि आप ज़्यादा, मतलब आपके जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी ना हो, लेकिन वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो आपके बॉस होंगे, या जो आपको एप्रिशिएट भी करेंगे और रिवॉर्ड भी कर देंगे आपको। और अल्टीमेटली आपका जो एक तवक्कल है ना, वो अल्लाह पे होना चाहिए कि अगर आपने मेहनत की है तो यू विल गेट रिवॉर्ड। आपको उसका रिवॉर्ड लाजमी मिलेगा अगर आपने हार्ड वर्क की है। तो इसलिए कन्विंस करने की आपको कोलीग को ज़रूरत नहीं है, आपको कन्विंस करने की ज़रूरत है वंस, मतलब आपके पास अगर स्किल है, आप किसी को कन्विंस करो या ना करो, लोग खुद ही कन्विंस हो जाते हैं। एक्सेप्ट करना या ना करना वो अलग चीज़ है, कन्विंस हो जाते हैं। तो अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मे बी फॉर 1 ईयर 2 ईयर आपको थोड़ा आइडिया होगा, मुश्किल होगी, लेकिन एंड ऑफ द डे
आप you will get success or you will get reward for that. ओके सर, अब हम इस इंटरव्यू को आपके लिए थोड़ा सा रिफ्रेशिंग बनाने लगे। हमने रैपिड फायर राउंड ऐड किया हुआ है। आपको 2 चॉइसेस दी जाएंगे और आपने एक सेलेक्ट करनी है। जी जी। शुड वी स्टार्ट सर? Yes. सर, फ़ोन कॉल और टेक्स्ट, Phone call. पाकिस्तान और फॉरेन कंट्री, Pakistan, but unfortunately I'm living in foreign country. फ्रीडम और होप, Freedom. आउटडोर्स और इंडोर्स, Indoor. इमरान खान और फवाद खान, Imran Khan. लाहौर और कराची, Lahore. मॉर्निंग वॉक और लॉन्ग ड्राइव, Long drive. माउंटेन्स और बीचेस, Mountains. मनी और हैप्पीनेस, Happiness. इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, Extrovert. आपको क्या लगता है जो इंट्रोवर्ट होते हैं, क्या इनके लिए नुकसान है कि वो अपने आइडियाज कन्विंस नहीं कर नहीं अपने आइडियाज किसी को आगे कन्वे नहीं कर सकते या कुछ इस तरह से? इंट्रोवर्ट का क्या मतलब कि नुकसान है अगर एक इंसान है? Actually, दो चीज़ें हैं। या तो आप अगर आप दुनिया में आए हैं, आप एक प्रोफेशनल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपको डेफिनेटली जब जॉब करेंगे आपके कोलीग्स भी होंगे, तो यू हैव टू एक्सप्रेस एवरीथिंग, मतलब जो आपके आइडियाज़ हैं, अपनी फीलिंग्स हैं या आपका फ्रीडम ऑफ थॉट्स हैं, जो आपकी थिंकिंग है, उसको आप कन्विंस करें, उसको एटलीस्ट दूसरे तक पहुँचाएँ। मतलब आप कोई रिसर्च भी करते हैं, अब पब्लिकेशंस का बेसिकली पर्पस क्या होता है? आपको कोई आइडिया मिला, आपने उस पे मेहनत की, थोड़ी रिसर्च की, एक रिसर्च पेपर लिखा। रिसर्च पेपर लिख के आप उस रिसर्च से दुनिया को फ़ायदा हो, आप उसको पब्लिश करें, दुनिया यस, उसको एक्नॉलेज करे, एनकरेज करे, आपका भी उससे अल्टीमेटली आपका ही फ़ायदा हो रहा है। या अल्टीमेटली एग्जैक्टली। यू आर गेटिंग रिवॉर्ड। तो मेरे ख्याल से आपको हर चीज़, मतलब जो आपके माइंड में है उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, या उसको मतलब आपके को प्लान्स हैं या आपके आइडियाज़ हैं, तो वो लाजमी आपके रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ एक्सट्रोवर्ट होके या हर चीज़ अपना जो एक थॉट्स है ना उसको आप दूसरे तक पहुँच कन्वे करें। ओके, दैट इज़ योर ओके, पर्सनैलिटी बेसिकली, मतलब व्हाट यू आर थिंकिंग, योर थॉट्स जो है आपकी, वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करती है पूरी। ओके, श्योर। तो ठीक हो गया। सर, अब मैं आपसे एक वर्ड पूछूंगी, आपने उसको एक सेंटेंस में जो है बताना है कि ये वर्ड आप क्या सोचते हैं, ठीक है? जी। ग्रुप। ग्रुप। जी। ग्रुप बेसिकली एक टीम वर्क होता है। मतलब जो मैं सोचता हूँ कि ग्रुप किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है, वो रिसर्च ग्रुप भी हो सकता है, वो फ्रेंड्स ग्रुप भी हो सकता है, वो फन ग्रुप भी हो सकता है। तो वो बेसिकली एक टीम वर्क होता है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। एक मतलब आप अकेले वो टास्क कंप्लीट करें, उसकी वर्थ वो नहीं होगी जो आप इकट्ठे आप रिसर्च ग्रुप होगा, उसमें डिफरेंट जो मेंबर्स हैं उनका डिफरेंट टास्क होगा, डिफरेंट ड्यूटीज़ होंगी। हर बंदा अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा। कोई फॉर एग्जांपल कोई रिपोर्ट राइटिंग में अच्छा है, कोई एक्सपेरिमेंटेशन में अच्छा है, कोई मॉडलिंग में अच्छा है, तो हर बंदा अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा। अगर आप ग्रुप में आपका फन ग्रुप है और आप कहीं मतलब आप कहीं जाना चाह रहे हैं या सैर करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप 5-6 हैं मतलब, तो यू विल हैव अ गुड टाइम, यू विल हैव या बेटर टाइम, मतलब आप एंजॉय एग्जैक्टली। करेंगे उसमें। ये वो एक्चुअली वो जो एंजॉयमेंट है आपकी, वो डिफरेंट मेंबर्स की पार्टिसिपेशन है। सर, यूनिवर्सिटी डिफरेंट लाइफ मेंबर। में कभी इस तरह हुआ है कि लाइक आप लोगों ने कहीं जाने का प्लान किया ग्रुप में और एक बंदा ऐसा आ जाता है जो प्लान सारा खराब कर देता है? कभी इस तरह से हुआ है आपके साथ? जी हुआ है, बहुत दफ़ा। एक्चुअली व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, हम 5 का ग्रुप था। मैं था, एक डॉक्टर महमूद माइनिंग के थे, वो अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, वो भी कुछ अर्सा पहले उनकी डेथ हुई है ओके। लास्ट ईयर। और आपकी मैडम मरियम, जो आपकी ओके। करंट फैकल्टी मेंबर हैं, और एक मैडम नायला और मैडम शुमाइला, हम 5 का ग्रुप था वैसे। तो हम ओके, काफ़ी, ठीक। सही। हमने अपने उस टाइम को काफ़ी अच्छे से, मतलब स्टडीज़ हमारी इकट्ठी थी, स्टडीज़, और फिर ज़्यादातर हमारी जो असाइनमेंट्स थी या प्रोजेक्ट्स थे, फाइनल प्रोजेक्ट था,
वो सब हमने इकट्ठे ही किया था। तो उसमें से काफ़ी सर तो मतलब इस तरह कि छोड़ कॉपी पेस्ट होता था आपकी असाइनमेंट्स में भी? नहीं, उस वक़्त बैचलर्स लाइफ़ में करते तो सभी हैं। तो हम करते थे लेकिन इतना नहीं करते थे कि बिल्कुल 100% कॉपी पेस्ट करके ले आएँ। उसमें थोड़ी ओके, चेंजेस करते थे। मतलब क्योंकि सही। हम एक ग्रुप पे जब काम कर रहे हैं, जब हमारी मतलब बैठ के कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं तो मतलब कॉन्सेप्ट मिलते थे, ज़हन माइंड मिलते थे लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस करते थे। ओके, सही। ओके सर, अब एक वर्ड है लीडरशिप। आप उसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? लीडरशिप बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है टॉलरेंस का, सैक्रिफाइस का और आपके विज़न का। आपके पास विज़न हो और उस विज़न को आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में लाने के लिए आपको एफर्ट भी करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए सैक्रिफाइस भी बहुत करना पड़ेगा और आपको उसके लिए पेशेंस भी बहुत आपको सब्र भी बहुत करना पड़ेगा। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसका जो आप इंटीग्रेट करें इनको, तो वो एक लीडरशिप बन जाता है या लीडरशिप उसको आप कह सकते हैं कि इस बंदे में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिस बंदे में ये 3-4 चीज़ें हों। विज़न होना बहुत ज़रूरी है आपका और उस विज़न को प्रैक्टिकल लाइफ़ फॉर्म में करने के लिए फिर आपको डेफ़िनिटली बाकी कुछ भी करना पड़ेगा। सर ईदी साहब। ईदी साहब ईदी साहब इज़ अ परफेक्ट मुस्लिम एंड परफेक्ट नोबल मैन। तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों के लिए सैक्रिफ़ाइस की और चाहे वो उनकी फाइनेंशियल थी या उनकी फ़िज़िकल एनर्जी थी। तो माशाल्लाह ही इज़ डेडिकेटेड हिज़ होल लाइफ़ फॉर द नेशन ऑफ पाकिस्तान। सर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं, बट वी शुड फोकस ऑन द पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स एंड इट्स अ वेरी गुड आई मीन इंटर network between your friends, your family and your social life. I mean बहुत एक अच्छा नेटवर्क है जिसमें आपके पुराने नए रीसेंट करंट डिफरेंट फ्रेंड्स उसमें आपसे कनेक्टेड रहते हैं हर वक्त। आप सर कोई अपग्रेड करें पोस्ट लगाएं तो उस पर भी सब मतलब एक नेटवर्किंग और कनेक्शन का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यस सर, समटाइम इस तरह होता है कि आपकी पोस्ट इस तरह की होती है फ्रेंड्स की, या मतलब वो रिफ्रेशिंग होती है आपके लिए बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। या सर मेमोरीज। मेमोरीज इज यूएटी ओके। and एंड यूईटी? UET is memory. यूईटी इज 4 years, मेमोरी एंड मेमोरी इज यूईटी। yes, and because we had a great time in UET and we enjoyed our time a lot. I also have memories with my wife as well. For the last 1 year, actually, I got married in December 2019, and I spent a very good time with my wife, and we had some trips. We went to Italy and Switzerland in February 2020. So, and even we had a very comfortable and very good and peaceful environment and peaceful time in at home. And now, alhamdulillah, we have a son. So, I mean, मेरी वाइफ के साथ भी बहुत बहुत अच्छी मेमोरीज हैं ओके। और होपफुली वी विल मेक मोर मेमोरीज इन फ्यूचर यस सर, इंशाल्लाह। तो सर इंशाल्लाह लाहौर, इंशाल्लाह। लाहौर के बारे में क्या कहना Lahore चाहेंगे? is my hometown. Like my whole life, I spent in Lahore. तो 2012 तक मैं लाहौर में ही रहा। मेरा पूरा बचपन मेरी प्राइमरी एजुकेशन, मेरी सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सब लाहौर में थी। तो आई मीन लाहौर तो ऐसे ही है जैसे आपके अंदर खून होता है, ओके। मतलब ऑलवेज इन माय सही, माइंड। सही। तो सर यहाँ पर हम अपना राउंड खत्म करते हैं जी और जी थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं रिगार्डिंग जॉब। जी। तो वैसे तो आपने हमें बहुत सारी दे दी है टिप्स भी और बताया भी अपनी जर्नी के थ्रू भी कि किस तरह से आपको जॉब मिल सकती है या ये। तो हम्म, अब अगर कोई इंसान अच्छा करियर अपना चाह रहा है, लाइक वो अच्छी जॉब करना चाह रहा है, तो उसको कौन सा किस तरह का पाथ अपने लिए मतलब डिसाइड करना चाहिए, किस तरह से उसको चलना चाहिए कि वो अपने विजन तक पहुंच सके?
एक्चुअली किसी भी विजन को, किसी भी डेस्टिनेशन को या ऑब्जेक्टिव्स को या गोल को अचीव करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। जिंदगी में Exactly. कामयाब होने का एक ही शॉर्टकट है, वो है हार्ड वर्किंग। Yeah. हार्ड वर्क और वर्क वर्क वर्क। आप जब हार्ड वर्क स्टार्ट करते हो या हार्ड वर्किंग करते हो तो बड़े से बड़ा गोल या ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर लेते हो। उसके लिए हार्ड वर्क 2-3 मतलब उसके पर्सपेक्टिव हैं। द फर्स्ट हार्ड वर्क टू इम्प्रूव योरसेल्फ या टू इम्प्रूव योर स्किल्स, कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स हों या आपकी लेबॉरेटरी स्किल्स हों या आपका नॉलेज हो। वो भी एक डेफिनेटली किस आपने स्किल्स इम्प्रूव करने हैं, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सोशल होना पड़ेगा, सोशल होने के लिए भी आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ आपको हार्ड वर्क के थ्रू ही मिलेगी। सर मतलब हमारे कायदे आजम सही कह के गए, काम काम और बस काम। एग्जैक्टली उनको उन्होंने काम 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 देखे, उन्होंने पूरा पाकिस्तान बना दिया। या ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। तो वो बहुत, और जितने बड़े बड़े नाम अब तक गुजरे हैं साइंटिस्ट के या जो प्रोफेसर, वो सब ही मतलब बहुत हार्ड वर्कर हैं। कोई ऐसा यस सर, टोटली नहीं है एग्री। जो विदाउट हार्ड वर्क इतना नाम पैदा करे, चाहे वो आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, फेराडे हो या ओहम हो। कोई भी नाम ऐसा नहीं है। या जैसे या हॉक स्टीफन है, ये MIT के प्रोफेसर थे, इनकी डेथ हो गई है। बहुत हार्ड वर्किंग थे, ये पैरालाइज्ड प्रोफेसर थे, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। यस सर, मतलब लास्ट टाइम तक भी काम किया इन्होंने। एग्जैक्टली इसी ओके। तरह जी। यस सर। सर जैसे आपकी एडिसन था, एडिसन, कैन यू इमेजिन कि एडिसन ने जब बल्ब इन्वेंट किया था, ही परफॉर्म 10,000 एक्सपेरिमेंट्स। मतलब हम जैसे बंदे अगर हमारे 10 एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएं तो वो क्विट, हम छोड़ सर देते बट हैं उसको। उन्होंने क्या किया था कि उस सबको नेगेटिव नहीं लिया था, उन्होंने कहा था कि मैंने यहाँ से अपनी गलतियां पता की हैं कि मैं ये गलती दोबारा ना एग्जैक्टली करूं। सो हम लोग को ये बहुत बड़ी बात है कि हमें डिसहार्ट नहीं होना चाहिए और छोड़ना भी नहीं चाहिए, बल्कि उसको एग्जैक्टली पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेके चलना चाहिए ताकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो। एग्जैक्टली। जैसे ओके मैं तो यहाँ पर 2018 में आया तो मुझे मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं 2015 में के स्टार्ट में यहाँ से चला गया था। तो आफ्टर 3 इयर्स कि मुझे दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और मैं दोबारा से एक अच्छी जगह पे और इतने पीसफुल एनवायरनमेंट में दोबारा आ जाऊँगा, जहाँ पे और इतने और रिसर्च मेरा एक शौक भी था। तो मैं मुझे वही जो मेरा अपना एक शौक है या जो मेरा अपना पैशन है, उसी में मैं दोबारा मेरी जॉब हो जाएगी। यस सर। तो सर लास्ट पर हम आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि कोई सजेशन डिपार्टमेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए, या अगर फ्यूचर में हमें कभी आपकी हेल्प की जरूरत पड़े लाइक इंटर्नशिप या किसी भी, तो आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे? डिपार्टमेंट के लिए मेरा ख्याल है कि अभी डॉक्टर फ़ारूक जो हैं, वो काफ़ी एक्टिवली और डेडिकेटेडली एफ़र्ट कर रहे हैं। तो यस सर। होपफुली डिपार्टमेंट इम्प्रूव ही करेगा। डिपार्टमेंट के बस ये कि जो इंशाल्लाह। आपके करिकुलम है, जो आपका कोर्स डिज़ाइन होता है, वो आपका इंडस्ट्री के बंदे उसमें इन्वॉल्व हों। मतलब आपके इतने एलुमनाई हैं, सब के सब ग्रेजुएट्स हैं यूईटी के जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो वो अपनी कंट्रीब्यूशन देने को हमेशा रेडी तैयार रहते हैं। तो उनके थ्रू आप उनसे पूछें कि इस वक़्त इंडस्ट्री में एडवांसमेंट्स क्या-क्या हैं? क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं? उनको इंक्लूड करें अपने करिकुलम में। उससे आपको आगे जाके जॉब्स में आसानी होगी, आपको आगे सर हायर स्टडीज़ में आसानी होगी। तो सर आप अभी एकेडेमिया को सिर्फ़ एकेडेमिया नहीं होती, एकेडेमिया में इंडस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इंडस्ट्री को भी उसमें इन्वॉल्व करें। यस सर, हमारे चेयरमैन इज एग्जैक्टली डूइंग द सेम थिंग राइट नाउ, बट पेंडेमिक की वजह से मतलब कुछ मसले हो गए हैं काफी सारे। तो सर अभी जिस तरह आप काम कर रहे हैं रिसर्चर, तो क्या आपके मतलब वैसे कंपनीज में या इस तरह से इंटर्नशिप वगैरह है कि लाइक आप अगर स्टूडेंट्स को रेफर कर सके कि वो वहां पर जाकर इंटर्नशिप कर लें? जी, मैं
नेस्पा के मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं जहाँ पर मैं रेफ़र कर सकता हूँ, और पेट्रोलियम में कुछ हैं जहाँ पर आप मैं इंटर्नशिप के लिए रेफ़र कर सकता हूँ। सो अगर मैं डिपार्टमेंट के लिए कुछ करता हूँ, डेफ़िनेटली मेरा वो पेरेंट डिपार्टमेंट है जहाँ से मुझे पहचान मिली, जहाँ से मैं अपने सफ़र का स्टार्ट मतलब शुरुआत की, तो मैं बड़ा मतलब आई विल फ़ील प्लेज़र, या मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं डिपार्टमेंट के किसी काम आ रहा हूँ, या डिपार्टमेंट Yes, के sir. बेटरमेंट के लिए या उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए मेरा एक रोल प्ले हो। Yes, sir. Thank you so much. Sir, if you don't mind, can I say something? Sure. Sir, you look very young at your age. MashaAllah. Alhamdulillah. But I'm 33 years old. I'm not young. ओके सर, आपने बहुत इंटेलेक्चुअली हमारे क्वेश्चंस का आंसर किया। लास्ट क्वेश्चन, आप अगर हमारे जो अब ग्रेजुएट्स जो अब हो रहे हैं या अभी करंट हैं, उनके लिए कोई एडवाइस? उनके लिए एडवाइस ये है कि अपने आप को ना मतलब सॉफ्टवेयर्स लाजमी सीखें। ड्यूरिंग योर बैचलर्स आपको जो बेसिक नॉलेज है वो डिपार्टमेंट आपको दे देता है, चाहे वो पेट्रोलियम का हो, चाहे वो टनलिंग या एक्सकवेशन का हो, या जियो टेक्निकल से रिलेटेड हो। कोर्सेज आप पढ़ लेते हैं, आपको सब नॉलेज आ जाता है, या आपको पता चलता है कि जियो टेक्निकल में क्या हो रहा है, जियो फिजिक्स में, टनलिंग में या पेट्रोलियम में। आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका जिसमें आप थीसिस करना चाहते हैं, उसमें उससे रिलेटेड, जैसे पेट्रोलियम में पेट्रोल आपको लाजमी सीखें आप। पेट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इस तरह इंटरैक्टिव पेट्रोफिजिक्स एक स्लम्बरजर का सॉफ्टवेयर है, वो लाजमी सीखें। मतलब मैटलैब लाजमी सीखें। मैटलैब इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। मैटलैब की कोडिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आगे जाके आपको मतलब एक हमारे लिए डेफिशिएंसी बन जाती है कि हमें मैटलैब नहीं आता। एक पाइथन है, पाइथन की कोडिंग सीखें, चाहे वो Yes, आप sir. सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन कोर्सेरा, यूडेमी से सीखें, या अपने टीचर्स को या चेयरमैन से रिक्वेस्ट करके उनसे कहें कि कोई बंदा ऐसा अपॉइंट करें जो हमें सॉफ्टवेयर सिखाए। बिलीव मी, मैटलैब, पाइथन, ये जितने सॉफ्टवेयर्स हैं, दीज आर बैकबोन ऑफ इंजीनियरिंग। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप कहीं पर भी जाएं, आप मास्टर्स पीएचडी करने जाएं या आप इंडस्ट्री में जाएं, आप आपको कहीं लाजमी लाजमी कहीं ना कहीं ये आपको इस्तेमाल करने ही हैं। तो ये आप अभी से, वो बैचलर्स में आपके पास टाइम होता है 4 साल का, आपके पास छुट्टियां, समर वेकेशन होता है, उसमें आप देखें, मतलब अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करके इन स्किल्स को अभी से आप अगर मतलब ग्रैस्प कर लेंगे, इन पे अभी से आपकी कमांड होगी, तो आपको आगे फ्यूचर में बहुत आसानी होगी। बिलीव मी, आप आगे फ्यूचर में आपको इन छोटी चीज़ों की कि आपको डेफिशिएंसी फील नहीं होगी, आपको बहुत आसानी होगी और बहुत अच्छे से आप एक्सेल कर जाएंगे एक सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए। यस सर, श्योर सर। हम लोग के डिपार्टमेंट में कुछ इंशाल्लाह। सॉफ्टवेयर सिखाए जा रहे हैं, और जिस तरह आप पाइथन बता रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस पर भी कुछ ना कुछ काम जरूर किया जाएगा, बिकॉज आपसे सुना है इसकी इतनी वर्थ है, तो डेफिनेटली इस पे काम जरूर किया जाएगा। जी जी So, जी। sir, thank you so much for your time that you managed from your busy वेलकम। schedule. नो Interview is प्रॉब्लम। really informative indeed, and we have learned that everything you have wanted is on the other side of fear. So don't एग्जैक्टली। let you down, lower yourself down, and keep working hard. एग्जैक्टली। So thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me for the interview, and that we all, the family of geological engineering department, will keep in touch with the, and Inshallah. Sure, you sir. may contact me anytime if you need any help, any guidance, or anything, I mean, for the improvement of the department. I will be happy to play my part. I will be happy to contribute from any perspective. So it is completely my pleasure. Thank you so much, sir. Thank you, Welcome. sir. Allah Thank Hafiz, you. sir. Welcome. Allah Sir, Hafiz. Allah Allah, Hafiz. Allah Hafiz. So we will soon conduct interview of other alumni of our department. So till then, stay tuned with official page of SG UT Lahore. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.